Hello, teacher friends. Actually, this video is meant for you. This may help a little bit to the students also on how to use textbooks. But mainly, this is for teacher training, effective use of textbooks, and framing high order thinking skills and low order thinking skills questions. So, how to use textbooks? Textbooks, a core resource. Textbook is a source of supplementary material. Textbook, an inspiration for classroom activities. Textbook, a curriculum in itself. Textbook exercises save time, give direction to lessons, guide discussion, facilitate in giving homework, making teaching easier, better, organized, and more convenient. In this pandemic environment of COVID 19, we are using PDF books, online books, e-books, but books always serve that type of purposes. Students see the textbooks as a framework or guide, and they believe the printed letters as true and helpful. It helps them to organize their learning both inside and outside the classroom. More about textbooks. Spend at least one class period at the beginning of the year exploring the textbook with your learners. Look excited. The dialogue is for teachers. Walk them, help them walk through the structure of the book, pointing out features. बच्चों को बताएं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आप भी एक्साइटेड हो और बच्चों को भी एक्साइट करें सो दैट दे would feel attracted towards the textbooks. And you know better, my colleagues or other teachers of any school, that textbooks and usage of textbook is everything in a classroom situation if we use it in a better manner. A scan for the low hanging fruit, introducing learners to a topic by asking them to open to relevant chapter and scan the pages. Scan the pages means to see everything whatever there is there on the page. Encourage them to look for pictures, headings, bolded words, and any chart or graph. And you know, this time in class 10, analytical essay, paragraph, or article is being asked on the basis of chart and graph. So, everything given in the textbook is important. Don't overlook or neglect anything. Some of the teachers, what they do, that they give them answers, ready-made answers of some fixed question and answer from the book, and some grammatical exercises, word attack, and other exploitation that is required by a teacher is not done. But our this idleness is killing the creativity of the children in the language. So why not to touch all the exercises? Textbooks use activities that require learners to do more than just passively read. In one of my video of art integration, some activities are shown how art teacher and subject teacher can sit together and plan activities to create interest for the learners. Second dot is taking notes while you read has been proven to increase comprehension level by up to 50%. क्लासरूम में जाके हम ये ना कहें कि ओके ओपन द बुक, गो टू पेज नंबर दिस वन, खास करके जब आप खुद पूछते हैं कि विच चैप्टर टुडे, तो ये ज़रा अटपटा लगता है. बी प्रिपेयर्ड. And if you are reading any text and your listener, learner, students, they are just looking at you like they are sitting in a theater, that's good, but not good if they have not any notepad, notebook, or pen, so that any important phrases or glossary or vocabulary or references, if you will give, they will note down or jot down. Highlight the important parts. Third point, keep your own notes handy. Fourth point, means your own notes must be ready also. More about textbook. To teach narration, textbook can be used to teach narration because dialogues are there in the stories, and dialogues are in direct and indirect speeches. So how it is framed, grammatical points are also hidden there. जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ाएं तो उसमें सीधे पैराफ्रेज बताने, अर्थ बताने से पहले आप क्या करें कि टेक्स्ट बुक के उस पार्टिकुलर चैप्टर को आप एक्सप्लॉइट करें अच्छे से,
उसके एक एक चीज़ को देखें। पहला लाइन अगर लिखा हुआ कि देयर वॉज ए किंग, तो देयर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इज और वाज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किंग कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू टेल द नेम। इस तरह से हम एक एक चीज़ पर ध्यान देंगे। दैट विल बी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड बेटर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ ग्रामर साइड बाय साइड दैट नरेटिव। हैव हायर इंग्लिश प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स। सभी क्लास में 2, 3, 4 स्ट्राटा के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बहुत सीधे बोलने वाले होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ होते हैं शाई नेचर के। तो जो शाई नेचर के स्टूडेंट हैं और जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट करने के लिए हैव हायर इंग्लिश प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स, एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स चूज एन एक्टिविटी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक टू टीच टू लेस प्रोफिशिएंट स्टूडेंट्स। और उनका एक पेयर वर्क करवा दीजिए, ग्रुप वर्क करवा दीजिए। तो ग्रुप वर्क में आप देखेंगे कि शाई स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं और उनको हमेशा इनकरेज करना है। अब सप्लीमेंट्री रीडर बुक का क्या करना है। सप्लीमेंट्री रीडर इज़ एडिशनल रीडिंग प्रैक्टिस। तो एडिशनल रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि ये यूजलेस है। जब तक आप एडिशनल रीडिंग नहीं करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ेंगे, तो आपका मेन रीडिंग से केवल उतना वोकेबलरी नहीं आएगा माय फ्रेंड, जितना आपके बच्चों को आना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग के लिए। सो उनको इनकरेज करें कि वो सप्लीमेंट्री रीडर जैसे बुक को भी उतना ही अच्छे से पढ़ें। इम्प्रूव्स सप्लीमेंट्री रीडर बुक इम्प्रूव्स extensive reading habit and general comprehension. They catch the central idea of the passage. It improves their vocabulary also. Or while doing unseen passage, these type of readings help. A supplementary reader usually contains stories, later stages biographies, and historical events are introduced there. The exercises are highly language centric because it is meant for transferring language training, if wisely and regularly used, can be a potential language learning tool. और अगर इसको रेगुलर बच्चे पढ़ें और आप उनमें इंटरेस्ट जगा के रखें, उनको पढ़ा पाएँ, तो क्या होगा कि दे विल बी वेरी मच ट्रेंड, दे विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ वोकेबलरी एंड दे विल बी एबल टू फॉलो टू इमिटेट creative writing. Now more about supplementary reader. Some do's and don'ts. The supplementary reader is done in the class. One full period is allotted for each lesson or story. Allow students to read and understand as much as possible. Don't read out the passage. Don't explain the content. No translation, no paraphrase. Please don't say the meaning only of any portion, but go through discussion. Help them understand the meaning. Use relevant pictures to help the students understand. Supplementary reader teaching. A supplementary reader introduce the most interesting passage first. Group activities or discussions are followed to answer difficult, let me adjust, passages. मान लो कि कोई डिफ़िकल्ट पैसेज है जिसको सिंगल रीडिंग से आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि एक्टिविटी से करवाएं इसे, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा, हमने डिस्कस किया, तो हम एक पेयर बनाएंगे और ग्रुप एक्टिविटी करवाएंगे। ग्रुप एक्टिविटी में आपके साई बच्चे जो हैं वो भी अपने फ्रेंड से बोलेंगे। हो सकता है कि वो आपके पास ना बोलें क्योंकि वो हमेशा उनसे गलती होती है, बट इन ग्रुप एक्टिविटी दे ऑलवेज गेट चांस। नो मैटर ग्रुप लीडर मे बी एनीवन, बट अ शाई स्टूडेंट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट. Students are asked to write the answers at home as home assignment we see. Now see one picture I have selected. With the help of this picture, I want to tell you that our phrase exploiting text. यहाँ पर एक आदमी है जो फावड़ा लेकर, कुदाल लेकर, स्पेड लेकर कुछ खोदने की कोशिश कर रहा है, और आप वहाँ पे फाइल्स या बुक देख रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ है डिगिंग डीपर. मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जब तक हम डिग डीपर नहीं करेंगे तब तक मीनिंग उतना अच्छा नहीं होगा, क्रिएटिविटी उतना अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट्स से हम उतना कुछ नहीं करवा पाएंगे जितनी हम उम्मीद रखते हैं. तो फिर से मैं ये अपील करता हूँ कि सीधे जाके टीचिंग करना, मीनिंग बताना अब हम छोड़ें और टेक्स्ट को एक्सप्लॉइट करना सीखें. पहले से उसका हम होमवर्क कर लें, घर में कुछ फ्रेज को हाईलाइट कर लें, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लें, कुछ फ्रेजेज को हाईलाइट कर लें, पहले उसको बताएं, बैकग्राउंड बताएं, क्वेश्चंस पहले बताएं, और फिर एक्सप्लोर करने दें ग्रुप वर्क करवा के स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करें.
ताकि वो मीनिंग को समझें और फिर अंत में आप उचित मीनिंग भी बता दें और फिर उनको ये जांचने दें कि वो सारा एक्सरसाइज करके मेहनत करके जब वहाँ तक पहुँचेंगे और तब वो कंपेयर करेंगे आपके आंसर से और अपने आंसर से, तब उनको लगेगा कि वो कितने परसेंट मेहनत की और उनको और कितनी करने की आवश्यकता थी। इसलिए वी हैव टू डिग डीपर, वी हैव नॉट टू go smoothly. Next points are for exploitation of text I have collected. Reading questions before the text. Don't give the answer directly. Read first questions. Naming फंक्शनल वर्ड्स, ऐसा मैंने आपको कहा था कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को सर्कल करें, अंडरलाइन करके बताएं कि जब वो पढ़ रहे हैं उस लाइन्स में तो कौन सा वर्ड क्या है, उनको बताने की एबिलिटी होनी चाहिए। जंबल समरी, आप जो टेक्स्ट पढ़ा रहे हो, स्टोरी पढ़ा रहे हो, उसका एक जंबल समरी बना लें और फिर उनको बोलें कि पढ़ाने के बाद कि इसको ठीक करें। ऐसा एक्सरसाइज होता भी है हमारे टेक्स्ट बुक्स में। वर्ड अटैक, वर्ड से रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह का एक्सरसाइज जरूर हो। डिक्टोग्लॉस एंड डिक्टेशन, ये क्या होता है कि अब आप कुछ फ्रेजेस को हाईलाइट कर लेते हैं, स्टेप वाइज यहाँ बताया भी है मैंने। देखो, स्टेप 1 गिव की फ्रेजेज, रीड टेक्स्ट टू देम, इसको ध्यान से सुनेंगे स्टेप्स को। रीड टेक्स्ट टू देम एट ए नॉर्मल, यहाँ पे एक मिस्टेक है, NOT हो गया है जबकि R होना चाहिए था। नॉर्मल स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट अराउंड, लगभग 120 से 25 वर्ड के अराउंड आप उनको एक रीडिंग दे दीजिए, मॉडल रीडिंग जो टीचर देते हैं। स्टेप 3 में टेकिंग नोट, रीड अगेन एंड दिस टाइम दे आर अलाउड टू टेक नोट्स, दे वॉन्ट राइट लाइन बाय लाइन। और स्टेप 3 में आप क्या करें कि उनको सुनने के बाद बोलें कि नोटबुक लेके करो और इस बार कुछ नोट्स वो करें, ये ना उनको बोलें कि वो लाइन बाय लाइन लिखें, शायद वो लिख भी नहीं पाएंगे और लिख भी लेंगे तो फिर वो उनका इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं होगा। तो स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, दे यानी स्टूडेंट्स रिक्रिएट द टेक्स्ट एज क्लोजली एज दे कैन टू द ओरिजिनल। रिक्रिएट मीन्स होता है वो ओरिजिनल टेक्स्ट को फिर से जैसा वो सुने थे आपसे वैसा ही लिखने का प्रयास करेंगे। दिस विल बी बेटर पेयर ग्रुप और ग्रुप वर्क, फिर से ग्रुप वर्क में इसको ले जाएंगे ताकि सारे लोग कंट्रीब्यूट करके एक लक्ष्य तक पहुंचने का यानी ओरिजिनल टेक्स्ट के जैसा लिखने का प्रयास करेंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या होगी कि आप जो रीडिंग कर रहे होते हैं या जब नेक्स्ट बार आप इस एक्टिविटी करवाएंगे तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे कि भाई इस टीचर को गौर से सुनो, क्योंकि इससे वो कुछ पूछने वाला है, इससे वो कुछ लिखवाने वाला है। और अगर वो ये जान जाते हैं आपकी कमजोरी कि भाई ये तो टीचर आएंगे अपना एक्सप्लेनेशन करना है, जो एक्सप्लेन करेंगे हमें तो की वाले बुक से बस देख के करना है, बस दैट्स ऑल, तो ये इसमें बच्चों का जो शिक्षा होगा वो अधूरा हो जाएगा माय फ्रेंड। तो एक रिक्वेस्ट है, इस तरह से एक्सप्लॉइट आप जरूर करें टेक्स्ट को। दे विल पोंडर, इससे क्या होगा, विचार करेंगे। दे विल ट्राई टू कनेक्ट लास्ट लिसनिंग फ्रॉम यू, जो आप लास्ट में पढ़ रहे थे उनके लिए तो उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्या बोले थे हमारे टीचर। तो ऐसे उनमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आएगा और ये बहुत ज़रूरी है शिक्षा के लिए। स्टेप 5 है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है कि गिव देम ओरिजिनल टेक्स्ट। अब इतना कुछ करने के बाद ओरिजिनल टेक्स्ट देना है। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे कि सीधे जाके ओरिजिनल टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दे रहे थे। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना एक्सरसाइज करने के बाद स्टेप 4 तक करने के बाद अब उनको ओरिजिनल टेक्स्ट देंगे और बोलेंगे कि भाई अब तुम कंपेयर करो और देखो कि तुम कितने हद तक लिख पाए हो। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है इसी को करने का कि यू कैन गिव देम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड डू द सेकेंड पार्ट एज डिक्टोग्लोस। हाईलाइट करके आप सेकेंड पार्ट को दे दें, फर्स्ट पार्ट को ओरिजिनल दे दें और जो सेकेंड पार्ट आप बाद में दे रहे हो उसको वो लोग पूरा करने। होमवर्क फॉर अस यहाँ पे है, टीचर्स के बारे में मैंने होमवर्क ये रखा था व्हेन आई वाज टीचिंग इन सेमिनार। कीप डिक्टोग्लोस हाईलाइटेड बिफोर हैंड, कीप जम्बल्ड समरी एटसेट्रा रेडी एट टूल्स। तो यहाँ पर हमारे लिए यूज़फुल क्या होगा कि यहाँ पे दूसरे दिन उनको पढ़ाना था तो मैंने ये उनको कहा था, लेकिन यहाँ आपके लिए यूज़फुल क्या होगा कि आप पढ़ाने जाने से पहले समरी और वर्ड्स और फ्रेजेज को हाईलाइट करके रखेंगे ताकि वो मिसलीड होने से उन्हें बचाएगा। और फिर अगर वो मिसलीड भी होते हैं अभ्यास करते समय तो आप उसको सही गाइडलाइन कर पाएंगे और आप ही मिसलीड रहेंगे और जानेंगे नहीं कि क्या बताना था तो फिर नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन, दिस में नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स। अब मैं ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कुछ नहीं जानते और मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ टेक्स्ट पे माय फ्रेंड्स एक जस्ट अपील है आपसे, कुछ टेक्स्ट में ये एप्लीकेबल हो सकता है, तो जहाँ भी ये मेथड मेरा एप्लीकेबल हो आप ज़रूर अप्लाई करें। फिर हम चलते हैं फेमस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। ये होता क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। ह्यूमन कॉग्निशन क्या होते हैं, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टू इन्फॉर्म और गाइड द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट, टेस्ट एंड अदर इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग करिकुलम, यूनिट, लेशन, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ओरिजिनल टेक्सोनॉमी क्या था, ये हिस्ट्री है उसका। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956
तो इस हिस्ट्री को आप वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लेना। मैं समय को बचाने के लिए, देखो 18 मिनट ये ऑलरेडी हो चुका है और अभी हमें बहुत सारा आगे भी समझना है। तो इस हिस्ट्री को आप ज़रा पढ़ लेना खुद से, ठीक है। और इसके फंक्शन पे मैं आपको ले चलता हूँ। यह साइकोमोटर डोमेन में हमारा आता है प्रिसीजन करने की हमें क्षमता होना चाहिए, एजिलिटी करने की क्षमता होना चाहिए और होता है, एंड्योरेंस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपके स्टूडेंट में। और अगर ये किसी एक व्यक्ति में है तो उसका साइकोमोटर डोमेन एक्टिव है। और इसको और एक्टिव करने के लिए अपने सब्जेक्ट में आपको ये एक्सरसाइजेस करवाना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो 6 बातें स्पेशल है वो है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। इसको आप बीएड करते समय देखे भी होंगे। अब देखो, जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप क्रिएटिविटी से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वर्ड ले सकते हैं, डिज़ाइन, बिल्ड, प्लान, कंस्ट्रक्ट। जैसे डिजाइन ए चार्ट या डिजाइन बिल्ड, है ना, ये सब वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। इवैल्यूएशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप शुरू करेंगे जज से, क्रिटिक से, टेस्ट से, डिफाइन से, डिफेंड से, क्रिटिसाइज से। इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। एनालाइजिंग से रिलेटेड आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप वो पूछें, उनको एग्जामिन करने किसी चीज़ को, कैटेगराइज करने, जैसे कोई ग्राफ वगैरह हो तो कंपेयर करने, कंट्रास्ट करने, है ना। ये आपका क्लास 10 के लिए भी बहुत यूज़फुल हो गया है। एनालिटिकल ऐसे पूछ रहे हैं अब उनको, तो एमबीए में भी एनालिटिकल एसेज लिखने आता है और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो एनालिटिकल एसेज के लिए कैटेगराइज करना, एग्जामिन करना आना चाहिए। और फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड है यूज़, डायग्राम, मेक ए चार्ट, ड्राइंग, अप्लाइंग, सॉल्विंग। ये हो गया अप्लाइंग। अगर आप अप्लाई से रिलेटेड, जैसे कोई शिक्षा कोई बच्चा ले रहा है तो उसको अप्लाई करेगा जीवन में, तो कहाँ करेगा, कहाँ यूज़ करेगा, इस तरह का क्वेश्चन एप्लीकेशन में होता है। अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है माय फ्रेंड, कि जब आप अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंटरप्रिटेशन से पूछिए, समराइज़ करने बोलिए, एक्सप्लेन करने बोलिए। और ये थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से रहता भी है हमारे टेक्स्ट बुक में। इन्फ्रेंच पूछिए, पैराफ्रेज करने बोलिए, डिस्कशन पूछिए। रिमेम्बरेंस से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, लिस्ट किसी चीज़ का, फाइंड, नेम, नेम एनी फॉर कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी, इस लाइक आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, मेमोराइज। ये क्या होगा, रिमेंबरिंग से रिलेटेड होगा। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ये और एक फिगर है, आप इसको समझ सकते हैं। ये भी एक और फिगर है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को, ये भी एक और फिगर है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक और है ये, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए रिमेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, कैन यू रिकॉल, ऐसे। तो अभी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, मैंने अलग से भी कम किया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। एनालाइजिंग से क्वेश्चन, रिमेम्बरेंस से क्वेश्चन, इवैल्यूएशन से बनाना है तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि टेक्स्ट बुक और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चंस बनाने रहते हैं टेस्ट के लिए, तो ये आपको हेल्प करेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी से क्वेश्चन बनाएंगे। ये है 4 C's, कोलैबोरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में टीचर से और बच्चों में कोलैबोरेशन नहीं होगा, पेरेंट्स टीचर और बच्चों का कोलैबोरेशन नहीं होगा तो फिर आगे काम क्या होगा। कम्युनिकेशन तो आप समझते ही हैं, मीडियम। और फिर क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, जो आर्ट इंटीग्रेशन के साथ हम क्रिएटिविटी अब लाते हैं तो उसको आप ज़रूर लाएं अपने क्लास में। और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों का ज़रूर हो, अप्रिशिएशन से रिलेटेड वो वर्क कर सकें। अब आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, देखो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वर्सेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये क्या है, क्वेश्चंस विच इनकरेज लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोड्स, आर दोज विच इंटरोगेटिव्स सच एज, जैसे वेन से क्वेश्चन हो, वेयर से क्वेश्चन हो, विच से क्वेश्चन हो, हाउ से क्वेश्चन हो, हाउ मेनी से, हाउ से नहीं, हाउ मेनी एंड हु। तो ये अक्सर इस तरह का छोटा जो क्वेश्चंस होता है वो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ओके। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में होता है कि वाई, इसमें आप रीजन देना पड़ता है, तब देखो ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। हाउ सोचना पड़ रहा है तो ये हाई ऑर्डर में चला गया। और मोर प्रोबिंग, ज़्यादा छानबीन वाला क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको टेक्स्ट पढ़ने पर मजबूर कर देता है बच्चों को या आपको, तो ये क्या हो जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन चला जाता है माय फ्रेंड। अब यहाँ दिया हुआ है कि वाई आर व्हाट्स इंपॉर्टेंट, तो ये 21st सेंचुरी में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी कारण दिया हुआ है। देखो नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन किया है कि नॉलेज से सैम्पल क्वेश्चंस पूछना है तो किस तरह का क्वेश्चन होगा। नॉलेज से आपका क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछो कि व्हाट हैपेंड आफ्टर कोई एपिसोड से, कि भाई चलो वो दोनों दोस्त जंगल गए तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट टू फ्रेंड्स वेंट टू द फॉरेस्ट, तो उसके बाद क्या हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हो जाता है। अब इसमें पोटेंशियल एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, मेक ए लिस्ट अप द मेन इवेंट्स। अब मेन इवेंट से आप लिस्ट पूछ सकते हैं। और भी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको क्वेश्चंस को सारे को पढ़ेंगे
तो मुझे विश्वास है पूरा कि आप नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने लगेंगे और आपको ये आपके इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाली और अच्छी बातें होगी कि भाई आपके पास लोग आएंगे पूछने कि सर कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन बनाना है तो किस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। और आप अपने स्कूल के सारे टीचर्स को ट्रेंड भी कर सकते हैं कि चलो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो बच्चों से, तो ऐसे शुरू करो। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एक्टिविटीज़ भी बगल में आर्ट इंटीग्रेशन से दिया हुआ है और सैम्पल क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो उसको कैसे बनाएंगे आप। और फिर एक मैं पढ़ता हूँ, डू यू नो अनदर इंस्टेंस वेयर कुड यू हैव हैपेंड इन, अगर आप उस जगह पे होते तो ऐसे अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें। सिंथेसिस से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देख लें। तो क्रिएट करने के लिए, क्रिएट का दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा, इन्वेंट, कंपोज, प्रेडिक्ट, प्लान, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, इमेजिन, पर्पस, ओके, डिवाइस, फॉर्मुलेट। तो क्रिएट वर्ड ना यूज़ करके आप ये सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। और फिर यहाँ पर एक चार्ट है इवेल्युएशन से रिलेटेड, फिर से यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है रिमेंबर से रिलेटेड, जो कि आपका एक रिवीजन देता है और वर्ड्स देता है। क्वेश्चनिंग योर क्वेश्चंस, जो भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आप उचित क्वेश्चन बनाते हैं। डू योर क्वेश्चन रेनफोर्स और रिविजिट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या जैसे तैसे हम क्वेश्चन बना के बस खाना पूर्ति कर देते हैं, अपने एचएम को दिखा देते हैं प्रिंसिपल को, या सही में हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो रेनफोर्स करे बच्चों को, रिविजिट करवाए। डज योर क्वेश्चन इंगेज पुपिल्स स्टूडेंट्स इन थिंकिंग, क्या आपके क्वेश्चन उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं। अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं बना देना है कि वो सोचते ही रह जाएं। डू यू इन्वॉल्व ऑल पुपिल्स, क्या सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनिंग स्किल्स हैं फ्रेंड की, अगर आप इसको जान जाएंगे आपका क्वेश्चन कैसा होना चाहिए तो आप ज़रूर उस पर ध्यान देंगे। अब आप 5-5 क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, फ्रेम 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, नॉलेज, एनालिसिस वगैरह से, और उसका प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि यू आर द मास्टर ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। और फिर आंसरिंग करने से ज़्यादा मुश्किल होता है क्वेश्चन बनाना कभी कभी फ्रेंड। तो थैंक यू, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यू आर लिसनिंग प्राणेश कुमार मिश्रा। प्लीज़ ब्लेस मी and encourage me by subscribing my channel so that I could bring such type of video for you. Thank you very much.